my screen. So as everybody knows that we are using routing. Now in this program, there is one small problem I have to check why it is not working. I'll show you that. But before that, I would also like to show you what we are doing. Okay, हमें क्या करना है वो भी हम देखेंगे पहले. So we are aware of that the first application. Okay, so suppose here I am writing npm start. I'm running this application. So now you can see it is running. It is showing me employee list. Now here I am showing one button called as add employee. Now if I'm clicking on this add employee, is it opening this page? तो yes. अभी ये पेज क्यों ओपन हो रहा है? तो अगर आपने यहाँ पे URL देखा तो पहला URL कौन सा है? स्लैश है. तो स्लैश URL के लिए ये वाला लिस्ट दिख रहा है. Now whenever I'm clicking on this button, यहाँ पे URL चेंज हो रहा है to add. Okay, यहाँ पे URL चेंज हो रहा है to add. So if I click on add employee, तो it is changing the URL to add and it is showing the form. अभी ये फॉर्म में अगर मैंने कुछ भी एंट्री डाला and if I click on add employee, is it taking me back to this page and it is showing this particular page over here? Can you see? Now if I'm clicking on update, ये update पे अगर हमने क्लिक किया तो is it changing the URL to edit 333 and because of that it is showing us the page और ये पेज में हमें ये डेटा भी दिख रहा है. Now if I'm modifying this particular data and if I click on update employee, so is it getting updated over here? तो yes. And if I यहाँ पे URL change हो रहा है, can you see? And if I'm clicking on delete button, तो it is deleting. अभी delete करते time हमें इधर ही रहना है. We don't want to navigate to any page. Okay, but if I click on add employee, it should come here and I should be able to add the data here. And if I'm clicking on add employee, so it is getting added. Are you clear what I'm saying? And when I'm clicking on that particular URL, it is showing me only that particular value. If I'm clicking on this update, it will update. If I click on delete, it will delete. If I click on add employee, it will delete. It will add employee. So is it displaying it as a routing? Routing जैसा दिख रहा है क्या? Yes or no? So this is how we are changing the URL और जैसे change URL होगा ये वाला portion का page change हो जाएगा. That is what we want. ओके, सो दिस इज व्हाट वी वांट टू डिजाइन. अभी ये जो हमें डिजाइन करना है उसके लिए हमने हमारा ये पेज डिजाइन किया है. नाउ इन आवर पेज व्हाट वी वांट टू डू इज वी डोंट वांट टू शो एवरीथिंग इन द ऐप. सो इसलिए हमने यहाँ पे जो लिस्ट एंड ऐड का पूरा लिखा था वो डिलीट किया और इधर हमने डाला राउटर. अभी ये राउटर यूज करने के लिए हमें रिएक्ट राउटर डॉम को इंस्टॉल करना पड़ता है. तो दैट वी इंस्टॉल्ड रिएक्ट राउटर डॉम. और रिएक्ट राउटर डॉम इंस्टॉल होने के बाद फिर हमें करना क्या है? सेकंड स्टेप इज इंपोर्ट ब्राउजर राउटर switch and root from the react router DOM. So I am copy pasting these steps in the Word document. So सबसे पहले हमें क्या करना है? We have to install react router DOM and for react we have to import three things. One is browser router, another one is switch and another one is root. तो ये एंट्री हमें डालनी है जहां जो भी फाइल में आप राउटिंग यूज कर रहे हो वहां पे. ओके, अभी जहां पे आपको राउटिंग यूज करना है, जैसे कि हमें यहाँ पे रूट्स यूज करने हैं अभी यहाँ पे, एंड उसमें से हमें यहाँ पे
एक ही रूट एग्जीक्यूट होना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे क्या डाला, स्विच डाला। पैकेज डॉट जेसन में हमने सिर्फ वर्जन चेंज किया, बिकॉज फॉर रिएक्ट डॉम वी डोंट वांट टू यूज वर्जन 6, यहाँ पे हमें 5.2 वर्जन यूज करना है, इसलिए हमने ये वर्जन सिर्फ चेंज करके रिएक्ट राउटर डॉम 5th वर्जन इंस्टॉल किया एंड नॉट 6th वर्जन। सुप्रिया, अभी यहाँ पे अगर हमने ऐप डॉट जेएस देखा तो वी आर एडिंग स्विच। ये स्विच क्यों ऐड किया, टू एग्जीक्यूट ओनली वन ऑफ द रूट। टू एग्जीक्यूट ओनली वन ऑफ द रूट, हमने यहाँ पे स्विच ऐड किया, और स्विच के अंदर हमें अभी अलग अलग रूट्स डालने हैं टू चेंज द यूआरएल। ओके, स्विच केस के लिए हमें अलग अलग यूआरएल डालना है। अभी यहाँ पे एग्जैक्ट हमने हर जगह पे लिखा तो भी चलेगा, मतलब ये एग्जैक्ट अगर हमने हर जगह पे लिखा तो भी कोई इशू नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट एक ही बार होगा, हर जगह पे लिखा तो भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अभी यहाँ पे अगर रूट हमें मिल गया तो आगे के रूट चेक करने की जरूरत है क्या, समीर? नहीं, तो डू वी वांट टू ब्रेक व्हेनेवर वी गेट द फर्स्ट मैचिंग पाथ? तो यस, इसलिए स्विच किया, अदरवाइज क्या होगा, वो सारे रूट चेक करेगा और एग्जैक्ट के लिए मैच करता रहेगा। तो अगर 10 रूट है, इज इट अननेसेसरी चेकिंग विल हैपन फॉर अदर रूट्स? यस और नो? इज इट अननेसेसरी चेकिंग दैट विल हैपन? तो यस, एंड इसलिए हमने क्या डाला, स्विच डाला इधर। अभी ये स्विच में हमने यहाँ पे एग्जैक्ट लिखा है फॉर पाथ एम्प्लॉय लिस्ट। अभी यहाँ पे हमने लिखा है जब हम स्लैश यूआरएल भेजेंगे तो एम्प्लॉय लिस्ट हमें डिस्प्ले करनी है, और ऐड यूआरएल भेजेंगे तो हमें फॉर्म दिखाना है और ये नया वैल्यू जो है वो ऐड करना है। दिस इज व्हाट वी वांट टू डू। अभी पहला वाला जो एप्लीकेशन मैंने दिखाया था उसमें हमने पूरा क्रूड किया है, वही इधर ऐड करना है। सो अगर हमने स्लैश यूज किया तो हमें यहाँ पे एम्प्लॉय लिस्ट दिखाना है, और ऐड यूज किया तो हमें यहाँ पे फॉर्म दिखाना है। अभी इसमें एक ही इशू आ रहा है जो अभी हम वैसे ही रखेंगे, बाद में आई विल रिजॉल्व कि वो क्यों हो रहा है, एंड आई विल हैव टू चेक इज देयर एनी डिपेंडेंसी वी हैव टू ऐड। अभी ये मैं स्टॉप कर रही हूँ। सो नाउ यू कैन सी दैट वी आर यूजिंग अवर एम्प्लॉय राउटिंग, एंड यहाँ पे अगर मैंने एनपीएम स्टार्ट किया, सो इट इज स्टार्टिंग अवर एप्लीकेशन। इट इज स्टार्टिंग आवर एप्लीकेशन, एंड लोकल होस्ट में जितना भी डेटा है वो दिखा रहा है इधर। तो अभी यहाँ पे यूआरएल स्लैश है, तो हैव यू नोटिस ये पूरा अभी नहीं दिखा रहा है, एंड इट इज शोइंग मी ओनली लिस्ट। अभी इसमें अगर मैंने ऐड एम्प्लॉय पे क्लिक किया तो इज इट चेंजिंग द यूआरएल? अगर मैंने ऐड पे क्लिक किया तो इज इट चेंजिंग द यूआरएल? तो यस, अभी एक्चुअली यूआरएल चेंज होने के बाद दैट ब्राउजर राउटर शुड हैव अपडेटेड दिस कंपोनेंट बाय एम्प्लॉय ऐड, बट वो नहीं हो रहा है। फॉर दैट आई विल हैव टू रिफ्रेश द पेज। अभी ये कुछ डिपेंडेंसी का इशू है, वो अगर हमने रिजॉल्व किया तो ये रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है, अपने आप होगा जैसे पहले वाले एप्लीकेशन में हो रहा है वैसे। बट अभी यहाँ पे रिफ्रेश करना पड़ रहा है, तो वी विल डू दैट राइट नाउ। लेटर ऑन आई विल चेक कि ये रिफ्रेश की जरूरत क्यों पड़ रही है। इट शुड आइडियली हैपन ऑटोमेटिकली। अभी यहाँ पे मैंने 100 किया और इधर मैंने कुछ वैल्यू डाला, और यहाँ पे अगर हमने कुछ वैल्यू डाला एंड इफ आई क्लिक ऑन सबमिट, अभी क्या होना चाहिए, सबमिट पे क्लिक किया तो क्या होना चाहिए, तो ये वाला डेटा ऐड होके डू वी नीड टू गो बैक टू द स्लैश यूआरएल? ऐड करके
डू वी वांट टू गो बैक टू द स्लैश यूआरएल? तो यस, यहाँ पे आना है वापस और फिर इधर हमारा डेटा ऐड हुआ हमें दिखना चाहिए. दिस इज व्हाट वी वांट. तो अभी ये अगर हमें करना है तो हाउ वी हैव टू डू. अभी ये एडिशन जो है वो हमने ये वाले कंपोनेंट में लिखा है. अभी यहाँ पे हमने ये बटन पे ऑलरेडी लिखा हुआ है. ऑन क्लिक किया तो क्या करना है? यू रिमेंबर, ऑन क्लिक किया तो ये ऐड फंक्शन कॉल करना है. ये ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है. अभी हाउ आई विल चेंज द यूआरएल टू स्लैश प्रोग्रामेटिकली. तो इधर हमने लिखा है प्रिवेंट डिफॉल्ट. फिर हमने यहाँ पे किया है ऐड एम्प्लॉय हैंडलर. अभी ये ऐड एम्प्लॉय हैंडलर क्या करेगा? app.js में जाके एरे में डेटा ऐड करेगा. फिर हमने ये फॉर्म को एम्प्टी कर दिया, बराबर. And now here you will have to write this dot props dot history. There is a history object, and in the history object we will have to add this slash. Right? अभी यहाँ पे this dot props dot history क्या करेगा? ये URL टॉप में पुश किया तो ये URL वो स्क्रीन पे दिखाएगा. So it is changing the URL. तो ये एक लाइन एक्स्ट्रा हमें ऐड करनी है. So this is equivalent to redirecting. So it will redirect the page to slash URL programmatically. तो अगर हमें किसी भी बटन पे क्लिक करके किसी दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट करना है तो हम क्या यूज करेंगे? पुश. अभी ये हिस्ट्री जो है इट इज लाइक अ एरे और उसमें जो टॉप मोस्ट एलिमेंट टॉप मोस्ट यूआरएल रहेगा वही हमें यूआरएल में दिखेगा. तो यहाँ पे हम पुश यूज कर रहे हैं. पूजा हम यहाँ पे रिडायरेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारा सिंगल पेज एप्लीकेशन है. तो डू वी वांट टू गो टू नेक्स्ट पेज या उसी पेज पे हमें कंपोनेंट चेंज करने हैं? रिडायरेक्ट किया तो क्लाइंट के पास आके सर्वर के पास जाता है. वी डोंट वांट टू मूव फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर, क्लाइंट टू सर्वर. ये वेब एप्लीकेशन हम जब बना रहे हैं तो सिंगल पेज वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं. एंड इसलिए रिएक्ट में अगर आपको रिडायरेक्ट करना है तो आपको क्या यूज करना है? दिस डॉट प्रॉप्स डॉट हिस्ट्री डॉट पुश. तो दिस विल एड द स्लैश एट द टॉप ऑफ द स्टैक. एंड इसीलिए अभी हम कहाँ जाना चाहिए? स्लैश मतलब ऐड पे क्लिक किया तो it should perform addition in the array and it should go back to slash URL. So now here if I am refreshing the page, let's check कि एक बार refresh recompile हुआ है क्या. तो अभी राउटिंग में हम सिर्फ क्या कर रहे हैं? हम URL चेंज कर रहे हैं और URL के हिसाब से हमारा डेटा स्क्रीन पे आना चाहिए. यस और नो? सो अभी स्लैश URL के लिए इट इज शोइंग अस एम्प्लॉय लिस्ट. सो स्लैश URL से हमारा यहाँ पे डेटा दिख रहा है. Now whenever I'm clicking on add employee, add URL आ रहा है, but I have to click on refresh to work to refresh the component जो नहीं करना है हमें बाद में. Now if I add यहाँ पे कुछ डेटा और यहाँ पे अगर मैंने कुछ सैलरी ऐड किया and if I click on submit तो अभी URL चेंज होगा स्लैश में. And if I refresh the page, is it coming back and is it adding the data that we have added here? जो टॉप मोस्ट यूआरएल रहेगा वो यूआरएल इधर आएगा, राइट? नहीं समीर, प्रिवेंट डिफॉल्ट तो लगेगा ही हमें क्योंकि हमें रिफ्रेश पेज नहीं करना है, हमें सिर्फ ये कंपोनेंट चेंज करना है, राइट? ये हेडर कांस्टेंट है ना हमारा. इज दिस हेडर कांस्टेंट? हमें पूरा पेज लोड ही नहीं करना है, हमें सिर्फ नीचे वाला कंपोनेंट है वही चेंज करना है ना. हमारा हेडर कांस्टेंट है. तो नाउ हियर इफ आई एम क्लिकिंग ऑन ऐड एम्प्लॉय तो ये यहाँ पे यूआरएल तो चेंज हो रहा है बट वो कंपोनेंट शिफ्ट नहीं हो रहा है. दैट आई हैव टू चेक. अभी यहाँ पे मैंने डाला 200 और इधर हमने कुछ नाम डाला एंड यहाँ पे अगर हमने सैलरी डाला एंड इफ आई क्लिक ऑन सबमिट
Now, if I'm refreshing the page, is it coming back here and is it showing me the output? So yes, right? So this is how we will have to write it. तो अभी यहाँ पे हमने already किया हुआ है link, right? शुभम, हमने link already किया हुआ है. अभी यहाँ पे if you notice, we have जो यहाँ पे click event में अगर हमें दूसरे URL पे जाना है तो we have to use this dot prop dot history. But अभी हम add बटन पे क्लिक करके अगर URL पे आ रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं? तो वो हमने कहाँ लिखा है? एम्प्लॉय लिस्ट में लिखा है. सो यहाँ पे अगर हमने ये बटन पे क्लिक किया तो आर वी यूजिंग लिंक टू स्लैश एड? ये यूज किया है. तो बिकॉज ऑफ दिस यूआरएल इज चेंजिंग. और ये यूआरएल अगर हमें यूज करना है तो वी हैव टू इंपोर्ट दिस लिंक फ्रॉम द राउटर डॉम ओवर हियर विच वी हैव ऑलरेडी एडेड, बट स्टिल इट इज नॉट वर्किंग. सो आई हैव टू चेक कि ये क्यों हो रहा है. शुभम, ओके, तो ये हमने इंपोर्ट ऑलरेडी किया हुआ है. स्टिल इट इज नॉट वर्किंग, बट आई विल हैव टू चेक वो क्यों नहीं हो रहा है. तो यहाँ पे लिंक डाला हमने और ये बटन पे क्लिक किया तो हमने यूआरएल चेंज किया. अभी ऐड यूआरएल के लिए हमने app.js में ऑलरेडी लिख के रखा है दैट अगर ऐड यूआरएल है तो कौन सा चाहिए हमें? एम्प्लॉय ऐड चाहिए, राइट? अभी ये एम्प्लॉय लिस्ट के अंदर ये तो हो रहा है, अभी ऐड तो हो रहा है, सिर्फ रिफ्रेश की जरूरत पड़ रही है, वो मैं चेक करूंगी. Now if I am clicking on delete, is it happening as is? delete अगर हमने यूज किया तो is it happening as is? तो delete में कोई इशू नहीं है. delete में हमने कोई यूआरएल चेंज ही नहीं करना है ना, हमें एक के ऊपर एक फंक्शन सिर्फ कॉल करने हैं. बट अगर अभी हमने यहाँ पे क्लिक किया, इसके ऊपर क्लिक किया तो क्या करना है? तो हमें ये वाला जो रो है वो फॉर्म में दिखाना है और उसके लिए हमें अलग राउटर लिखना पड़ेगा, बराबर? और वो राउटिंग करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? नाउ वी वांट टू ऐड अ, वी विल हैव टू ऐड अ क्लिक इवेंट ऑन पेनफिल, राइट? तो यू रिमेम्बर हमने ये जो एम्प्लॉय कार्ड बनाया है, ये एम्प्लॉय कार्ड में हमने ट्रैश पे क्लिक इवेंट डाला है ऐसे, क्योंकि हमें यहाँ पे यूआरएल चेंज नहीं करना है. बट व्हेन आई क्लिक ऑन दिस हमें यूआरएल चेंज करना है, राइट? और यूआरएल अगर हमें चेंज करना है तो वी हैव टू यूज लिंक टू. तो इसीलिए ये पेनफिल आइकॉन को अभी हमें किस में डालना पड़ेगा? लिंक में डालना पड़ेगा. और यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा टू इज इक्वल टू यूआरएल किसको चेंज करो? अगर हमें लिंक डालना है तो वी विल हैव टू से यूआरएल किसको चेंज करो? टू एडिट. और उसके सामने हमें आईडी भी चाहिए, उसके लिए हमें आईडी भी लगेगा. इसलिए कैन वी पास दैट आईडी विथ यूआरएल? तो यस. बट ये एडिट पे जाने के बाद डू वी वांट टू शो दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट आल्सो? ये पूरा ऑब्जेक्ट भी उसको पास करना पड़ेगा ना फॉर्म में दिखाने के लिए, यस और नो? तो नाउ वी जस्ट डोंट वांट टू सेंड द डेट आईडी थ्रू यूआरएल, बट हमें उसको डेटा भी भेजना है. एंड इसीलिए अभी सिर्फ यूआरएल होता था तो हम ऐसे लिखते थे, बट अभी ये यूआरएल को हमें डेटा भी भेजना है. एंड इसीलिए वी विल हैव टू पुट इट इनसाइड द कर्ली ब्रेसेस एंड हमें पूरा ऑब्जेक्ट भेजना पड़ेगा. इसलिए और एक कर्ली ब्रेसेस डालना है इसके बीच में. ओके, हमें पहला कर्ली ब्रेसेस डालना है और उसके अंदर अभी पूरा ऑब्जेक्ट भेजना है, इसलिए और एक कर्ली ब्रेसेस डालना है. और वो ऑब्जेक्ट में हमारा पहला प्रॉपर्टी रहेगा पाथ नेम कोलन. और इधर हमारा पाथ नेम क्या है? देखो, अभी ये पाथ नेम में हमें लिखना है स्लैश एडिट. और ये एडिट के सामने हमें कौन सा ये एडिट के सामने हमें कौन सा वैल्यू भेजना है? डू वी वांट टू सेंड दिस पर्टिकुलर वैल्यू? तो इसके साथ हमें यहाँ पे क्या लाना है? द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल.
okay, the value of this variable. So props dot employee dot id ये पहला पाथ नेम आएगा, और दूसरा जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, स्टेट। अभी दूसरा प्रॉपर्टी जो हमें भेजना है उसको हमने नाम दिया स्टेट, और इसमें ये स्टेट को भी एक वेरिएबल पास करना पड़ेगा, राइट। और ये वेरिएबल जो है वो ऑब्जेक्ट है। सो इधर अगर मैंने लिखा एम्प्लॉय, हमारा ऑब्जेक्ट कौन सा है, एम्प्लॉय कोलन, और इसमें हमें क्या पास करना है, प्रॉप्स डॉट एम्प्लॉय, पूरा ऑब्जेक्ट पास करना है इन दिस पर्टिकुलर लिंक बाय व्हाट नेम, एम्प्लॉय वाया विच वेरिएबल, स्टेट। तो स्टेट प्रॉपर्टी में हमने क्या किया, ये जो प्रॉप्स के थ्रू एम्प्लॉय आया था वो इधर भेजा, सो दैट ओल्ड डेटा हम भेज रहे हैं क्या एडिट को, सो दैट इट विल डिस्प्ले इट ऑन द पेज। डू यू अग्री? ओल्ड डेटा हम भेज रहे हैं सो दैट इट विल डिस्प्ले इट ऑन द पेज। तो अभी हमने यहाँ पे ये पाथ यूज किया, और इधर ये वाला वैल्यू भेजा। ओके, यहाँ पे एक ब्रैकेट मिसिंग है। सो नाउ वी हैव दिस कर्ली ब्रेसेस फॉर असाइनिंग द वैल्यू टू 2, एंड जो वैल्यू हमें असाइन करनी है वो सिंपल स्ट्रिंग नहीं है, वो ऑब्जेक्ट है, इसलिए और एक कर्ली ब्रेसेस डालना पड़ा। आर यू विथ मी? तो जब भी हम क्लिक करेंगे तो ये डेटा हमें पास करना है टू शो इट इन द फॉर्म, एंड इसलिए दिस इज द वे वी शोड दैट डेटा। और यूआरएल कौन सा जनरेट किया, एडिट यूआरएल जनरेट किया। अभी एडिट यूआरएल आया तो क्या करना है, वो हमें लिखना पड़ेगा राउटिंग में। अगर एडिट यूआरएल आया तो क्या करना है, वो हमें लिखना पड़ेगा राउटिंग में। So now in app.js, do we need to add one more router? In app.js, do we need to add one more router? और वो राउटर में हमें क्या लिखना है, एडिट कोलन स्लैश एम्प्लॉय। तो ये इधर अभी app.js में कैन वी ऐड सिमिलर रूट हियर, जैसे इधर लिखा है वैसे लिखना है। और सिर्फ यहाँ पे अभी यूआरएल क्या चेंज होगा, एडिट स्लैश कोलन emp id, एडिट स्लैश कोलन emp id, और इधर लिखना है रेंडर, फिर हमने लिखा props, and now instead of employee add we want to show another component which is employee edit, जिसमें employee add जैसा ही फॉर्म होगा, employee add जैसा ही फॉर्म होगा, राइट। और जैसे हमने add employee कॉल किया है यहाँ पे, and we want to call the employee add handler, ओवर हियर हमने जैसे एम्प्लॉय ऐड हैंडलर ऐड किया है वैसे बाद में हम यहाँ पे अपडेट हैंडलर ऐड करेंगे, बाद में करेंगे। ओके अभी हमने क्या किया, वी हैव एडेड एम्प्लॉय एडिट एंड वी आर राइटिंग प्रॉप्स हियर। तो हमने किया, अगर यहाँ पे यूआरएल आया एडिट कोलन emp-id, तो विच कंपोनेंट आई वांट टू डिस्प्ले, एम्प्लॉय एडिट कंपोनेंट आई वांट टू डिस्प्ले। अभी जो अपडेट होगा उसका एरे इधर ही है, राइट। जब हम वो अपडेट करेंगे डेटा तो उसके लिए एरे इधर ही है। तो जैसे हमने रिमूव एम्प्लॉय इधर लिखा है वैसे ही क्या हमें अपडेट एम्प्लॉय भी इधर ही लिखना पड़ेगा। जो डेटा अपडेट करना है वो डेटा अपडेट एम्प्लॉय इधर ही लिखना पड़ेगा, यस और नो, क्योंकि हमारा एरे इसी में है। तो कैन वी ऐड अ कोड फॉर अपडेटिंग एम्प्लॉय, इधर इधर ही करेंगे। सो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे अभी हमने और एक डाला कांस्टेंट अपडेट emp is equal to
and we want to update the particular employee. अभी update कैसे करेंगे? Now if I want to update, do we need to replace the existing object with new object? In replace, do we need to replace existing object with new update? तो yes. एंड इसीलिए ये अपडेट जो है उसको हम पास क्या करने वाले हैं, उसको हम पास करेंगे आईडी. जो ऑब्जेक्ट हमें अपडेट करना है वो ऑब्जेक्ट इधर आएगा पूरा, राइट? तो वो ऑब्जेक्ट अगर इधर आया तो नाउ कैन आई राइट हियर सेट EMP-ARR. अभी इसमें हमें सेट करना पड़ेगा और वो जो EMP-ARR है वो हमें नए एरे से रिप्लेस करना है. और वो एरे कौन सा होगा? तो वी आर सेइंग EMP-ARR.map. EMP-ARR.map. और मैप में हमें ये फंक्शन लिखना है that we are getting this some object called as E. और कौन से ऑब्जेक्ट हमें रिप्लेस करना है? सो हियर वी आर सेइंग रिटर्न. अभी कौन सा ऑब्जेक्ट रिप्लेस करना है? E.EMP-ID. जो ऑब्जेक्ट एरे से आ रहा है उसका आईडी चेक करना है, विच शुड बी इक्वल टू जो हमने एरे पास ऑब्जेक्ट पास किया है उसका आईडी. तो दिस इज द ऑब्जेक्ट विच वी हैव गॉट एज अ न्यू ऑब्जेक्ट और इसके अंदर का जो ऑब्जेक्ट है उसका आईडी हम चेक कर रहे हैं. सो वी आर चेकिंग अगर ये दोनों आईडी मैच होते हैं तो हमें क्या करना है? तो हमें नया ऑब्जेक्ट भेजना है. तो उधर हमें ओल्ड ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करना है विथ न्यू ऑब्जेक्ट, अदरवाइज जो ओल्ड ऑब्जेक्ट है वही रिटर्न करना है. सो ओवर हियर in set EMP array we are writing employee array. Okay, we are writing employee array, then we are writing map. फिर हमने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा E, यहाँ पे हमने ब्रैकेट में लिखा E. एंड ये जो E आएगा उसका एम्प्लॉय आईडी वी ट्राई टू मैच विद द एम्प्लॉय आईडी ऑफ द ऑब्जेक्ट विच वी आर गेटिंग फॉर अपडेट. और अगर ये मैच होता है तो हमें उसको रिप्लेस कर देना है विथ न्यू ऑब्जेक्ट, अदरवाइज हमें ओल्ड ऑब्जेक्ट ही रिप्लेस करना है. सो आर वी राइटिंग दैट वैल्यू? आर वी यूजिंग दैट वैल्यू? तो यस. तो अभी ये जो हमारा एम्प्लॉय एरे है, ये जो हमारा एम्प्लॉय एरे है उसके लिए हमें मैप लिखना है. सो आई एम रिमूविंग दिस एंड आई विल रीटाइप इट. कुछ एरर आ रहा है इसलिए. अब ये सेट EMP-ARR में हमें क्या लिखना है? EMP-ARR.map. और ये मैप के अंदर डू वी नीड टू ऐड अ फंक्शन? ये फंक्शन खत्म हो चुका है ना इधर, क्यों एरर आ रहा है मैप को? ये फंक्शन ये जो है वो इसका है, ये तो करेक्ट है ना? अपडेट ERR. लाइन नंबर 59 एरो ऑपरेटर नहीं लिखा है. क्या नहीं लिखा? एरो ऑपरेटर लाइन नंबर 59. ओ ओके 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 ओके. ग्रेटर देन नहीं लिखा मैंने उधर. तो वो हियर वी आर राइटिंग EMP-ARR.map और उसके अंदर हमें एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, ये आएगा एरे से और ये हमें चेक करना है. सो हियर आई एम राइटिंग रिटर्न. कौन सा वाला रिटर्न करना है? E.EMP-ID अगर इक्वल टू जो हमने अपडेट के लिए भेजा है EMP.EMP-ID उसके साथ अगर मैच हो रहा है तो हमें क्या करना है? आई वॉन्ट टू रिप्लेस इट विथ न्यू ऑब्जेक्ट. तो कैन वी राइट हियर spread operator of object?
एंड अगर ये मैच नहीं हुआ तो हमें रिटर्न क्या करना है, जो ऑब्जेक्ट है वही रिटर्न करना है, जो ऑब्जेक्ट मैच करना है वही, जो ऑब्जेक्ट पुराना है वही रिटर्न करना है। सो ये मैप ऑपरेटर जो ई है वही पास करेगा, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट के लिए जहां पे आईडी मैच होगा वहां पे वो नया ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। विल इट रिप्लेस द ओल्ड ऑब्जेक्ट? Will it replace the old object? Yes. So over here we are using this update employee which will actually update the data. But अभी ये update employee हमने लिखा है app.js में, but actually वो कॉल कहाँ होने वाला है, यहाँ पे. So shall we add one handler property to which we associate this particular reference of the function? तो yes. And इसीलिए यहाँ पे जैसे हमने add employee के लिए handler लिखा है वैसे ही हमें update employee handler लिखना पड़ेगा. Which should be equal to, और ये जो फंक्शन हमने लिखा है वो वाला फंक्शन जैसे हमने ऐड के लिए किया है वैसे ही सेम. तो कैन वी assign that over here as a reference? So now in our employee edit we have one property called as update employee handler which will call this particular function. Okay, तो अभी कौन सा एक कंपोनेंट हमें ऐड करना है? So we want to add a new component that is employee edit.js. तो ये जैसे ऐड है वैसे ही now we will have to add, I'm copying this add component and I'm pasting it over here. And shall we change the name of it? क्योंकि वही फॉर्म हमें दिखाना है, जो फॉर्म हमने ऐड में यूज किया है वही फॉर्म हमें एडिट में दिखाना है, राइट? तो कोड वही रहेगा, थोड़ा सा चेंज होगा. सो नाउ वी आर गोइंग टू राइट एम्प्लॉई एडिट. ओके, नाउ वी आर राइटिंग एम्प्लॉई एडिट. तो यहाँ पे वी आर एडिंग एम्प्लॉई एडिट हैंडलर विच एक्सटेंड्स, इज इट एग्जैक्टली सेम एज ऐड? ऐड में जो फॉर्म दिखाना है वही दिखाना है इधर, सिर्फ हमने अभी यहाँ पे चेंज किया नाम उसका एम्प्लॉय एडिट, और यही नाम हमें इधर भी चेंज करना है इधर. नाउ डू वी वांट टू शो द सेम फॉर्म? यस. अभी यहाँ पे ऑन क्लिक में इधर सबमिट की जगह पे सिर्फ क्या दिखाना है हमें, बटन पे जो हेडिंग दिखता है एड एम्प्लॉय की जगह पे क्या लिखना है अभी? अपडेट एम्प्लॉई. ओके, ऑन क्लिक में अभी दिस डॉट एड को हम चेंज कर देंगे दिस डॉट अपडेट को, बाकी तो कोड वही रहेगा, बाकी तो कोड वही रहेगा क्योंकि वही फॉर्म डिस्प्ले करना है. सो नाउ हियर वी आर चेंजिंग इट टू अपडेट. तो आई एम डिलीटिंग दिस फंक्शन, ये सिर्फ फंक्शन हम वापस लिखेंगे, मैं ये डिलीट कर रही हूँ ऐड फंक्शन. अभी ये जो स्टेट है वो इनिशियली एम्प्टी है, इसलिए ऐड में हमारे सारे, somebody's mic is on, mic is on. तो अगर हमने अपडेट पे क्लिक किया, ऐड पे क्लिक किया तो हमें ब्लैंक फॉर्म देखना था, इसलिए हमने ये स्टेट को कैसे किया, ये स्टेट को हमने ब्लैंक किया. बट नाउ डू वी वांट टू रिट्रीव द डेटा विच इज कमिंग वाया अपडेट? एडिट लिंक के थ्रू जो ऑब्जेक्ट आ रहा है वो हमें इधर रिट्रीव करना है. सो हाउ कैन वी गेट दैट ऑब्जेक्ट ओवर हियर? तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास कहाँ से आएगा? एडिट के थ्रू आएगा. मतलब अगर हमने ये एम्प्लॉय कार्ड में ये इस पे क्लिक किया तो आर वी रिसीविंग दिस ऑब्जेक्ट हियर बाय नेम एम्प्लॉय? तो यहां से हमें वो ऑब्जेक्ट आ रहा है लिंक के थ्रू. सो दिस लिंक इज टेकिंग केयर ऑफ ट्रांसफरिंग दैट डेटा टू योर URL. अभी ये URL से इट विल कम बैक टू app.js, and app.js के थ्रू इट इज सेंडिंग दैट डेटा टू विच कंपोनेंट? एम्प्लॉय एडिट. तो अभी ये एम्प्लॉय एडिट जब दिखेगा
तो आई शुड बी एबल टू रिट्रीव दैट डेटा. सो इनसाइड कंस्ट्रक्टर अभी सबसे पहले हमें क्या करना है. सो हियर आई एम सेइंग सुपर प्रॉप्स. तो ये सारे जो प्रॉपर्टीज आ रहे हैं पेरेंट के थ्रू वो हम पास कर रहे हैं. एंड अगर आपको देखना है वो ऑब्जेक्ट जो एडिट के लिए आ रहा है तो कैन आई राइट हियर कंसोल डॉट लॉग एंड इधर मैं लिखूंगी दिस डॉट प्रॉप्स, क्योंकि डेटा तो आएगा प्रॉप्स के थ्रू, यूआरएल के थ्रू आ रहा है. तो बट अभी ये नॉर्मल नहीं है, हम राउटर यूज कर रहे हैं, इसीलिए प्रॉप्स के अंदर देयर इज वन प्रॉपर्टी कॉल्ड एज लोकेशन, क्योंकि यूआरएल के थ्रू डेटा आ रहा है. सो हमें यूआरएल से जो भी आता है वो रिट्रीव करना है, तो इधर यूज कौन सी प्रॉपर्टी करनी है, लोकेशन. इज इट अ विंडो ऑब्जेक्ट वी आर यूजिंग, विंडो में लोकेशन ऑब्जेक्ट है एंड वो लोकेशन ऑब्जेक्ट के अंदर हमने भेजा है स्टेट और स्टेट के अंदर हमने भेजा है एम्प्लॉई. तो इफ यू सी दिस एम्प्लॉय कार्ड, तो डू हैव वी सेंड स्टेट ओवर हियर, कैन यू सी स्टेट, और स्टेट के अंदर हमने ये प्रॉप्स डॉट एम्प्लॉय किसको असाइन किया है, यहाँ पे हमने एम्प्लॉय लिखा है, राइट. सो नाउ हियर इन एम्प्लॉय एडिट वी आर सेइंग कि ये जो लोकेशन ऑब्जेक्ट है जो प्रॉप्स के थ्रू आएगा उसमें से स्टेट में से ये एम्प्लॉय रिट्रीव करो, उसमें से ये स्टेट में से एम्प्लॉय रिट्रीव करो. अभी ये एम्प्लॉय में से हमें जो आईडी है वो इधर असाइन करना है, नेम इधर असाइन करना है और सैलरी इधर असाइन करना है, सो दैट वो फॉर्म में दिखेगा, सो दैट वो फॉर्म में दिखेगा. तो कैसे निकल लेंगे. सो कैन आई राइट हियर दिस डॉट प्रॉपर्टी डॉट स्टेट डॉट एम्प्लॉय डॉट EMPID, ऐसे लिख सकते हैं. फिर यहाँ पे लिखेंगे दिस डॉट props डॉट लोकेशन डॉट सेट डॉट एम्प्लॉय डॉट ईनेम, तो ये ईनेम असाइन करेगा उसका. और यहाँ पे अगर हमने डाला एम्प्लॉय डॉट सैलरी तो ये सैलरी असाइन करेगा. सो विल इट असाइन द वैल्यूज ऑफ दोज प्रॉपर्टीज ओवर हियर. बट इज इट टीडियस जॉब ये बार बार टाइप करना, इज इट टीडियस जॉब. यस, तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन है. सो उसके लिए कैन आई राइट हियर एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं कांस्टेंट, और ये ऑब्जेक्ट में हमने बोला EMPID चाहिए, फिर ईनेम चाहिए और फिर सैलरी चाहिए, और ये ऑब्जेक्ट को हमने ये वाला ऑब्जेक्ट असाइन कर दिया. नाउ हैव आई असाइन दिस एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट इनटू दिस ऑब्जेक्ट, और एम्प्लॉय आईडी का वैल्यू इधर आ जाएगा, ईनेम का वैल्यू इधर आ जाएगा और सैलरी का वैल्यू इधर आ जाएगा. एंड नाउ हियर you can write only employee ID. फिर हमने यहाँ पे क्या लिया, एम्प्लॉय नेम, और यहाँ पे हमने क्या लिया, सैलरी. तो ऐसे हम लिख सकते हैं. बट डू यू रिमेम्बर, अगर हम एम्प्लॉय आईडी ई नेम सैलरी सैलरी ऐसे अगर लिख रहे हैं, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट लाइक दिस, can I write only EMPID, ename, salary? Is it equivalent? You remember हमने जावास्क्रिप्ट में देखा है. Is it equivalent? Yes. And इसीलिए हमने इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट लाइक दिस यू मे राइट इट लाइक दिस. और ये एम्प्लॉय आईडी, ई नेम और सैलरी वेरिएबल में वैल्यूज आने के लिए आर वी असाइनिंग दिस एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, एनोनिमस ऑब्जेक्ट. तो आईडी जो है वो आईडी में आएगा, नेम है वो नेम में आएगा, सैलरी है वो सैलरी में आएगी. एंड देन दैट वेरिएबल्स वी आर असाइनिंग टू द स्टेट. अभी स्टेट में अगर हमारे पास डेटा आ गया एंड ये स्टेट को हमने वैल्यू को असाइन ऑलरेडी किया हुआ है, यू रिमेम्बर, यहाँ पे हमने उसको वैल्यू को ऑलरेडी असाइन किया है. तो अगर हमने कंस्ट्रक्टर में ये डेटा लिखा तो विल इट अपीयर इन द पेज, फॉर्म में दिखेगा क्या, फॉर्म में दिखेगा. तो इसलिए जब हम एडिट पे क्लिक कर रहे हैं तो जो आने वाला ऑब्जेक्ट है वो हमने यहाँ पे लिया,
जो ऑब्जेक्ट हमें इनपुट आया है वहां से हमने डेटा डाला स्टेट में, एंड देन दिस स्टेट वैल्यूज वी आर शोइंग हियर इन द यूआरएल एंड इन द वैल्यू, एंड बिकॉज ऑफ दैट हमें ये डेटा फॉर्म में दिखेगा। बिकॉज ऑफ दैट ये डेटा हमें फॉर्म में दिखेगा। अभी फॉर्म में दिखने के बाद इफ आई क्लिक ऑन दिस बटन तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा? तो अपडेट फंक्शन कॉल होगा। सो नाउ डू वी नीड टू ऐड अपडेट फंक्शन? तो यस। अभी अपडेट फंक्शन कैसे ऐड करोगे? सो कैन आई राइट हियर द फंक्शन अपडेट which is equal to a update function, और ये फंक्शन के अंदर हमें कोड लिखना है। सो हाउ टू अपडेट द डेटा? अभी ये कोड तो एग्जैक्टली सेम ही होगा जो ऐड में हमने लिखा है। तो ऐड में भी हम कैसे करते हैं, बटन अगर सबमिट है तो यहाँ पे हम इवेंट लिखेंगे, एंड देन ओवर हियर वी आर राइटिंग event dot prevent default। फिर क्या लिखना है? अगर हमें देखना है दैट आर वी इन अपडेट फंक्शन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे console.log अपडेट इन अपडेट फंक्शन। तो अभी हमने क्या किया? आई एम सेविंग दिस पर्टिकुलर कोड। अभी हमने क्या किया? आई एम रिपीटिंग द स्टेप्स। पहले हमने एम्प्लॉय कार्ड में ये पेन फिल को लिंक में एनक्लोज किया और लिखा दैट इफ वी क्लिक ऑन दिस, तो यूआरएल क्या चेंज करना है? तो यहाँ पे हमने डाला पाथ नेम। ओके तो यहाँ पे हमने डाला पाथ नेम, और पाथ नेम में क्या लिखा है? पाथ नेम में हमने लिखा है दैट जनरेट अ यूआरएल कॉल्ड एज एडिट, और उसके बाजू में क्या आना चाहिए? एक्चुअल एम्प्लॉय आईडी। सो अगर 100 रहेगा तो 100 आएगा, बट इसके साथ साथ हमें ये यूआरएल को डेटा भी भेजना है। सो आर वी पासिंग द एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट ओवर हियर? तो यस। तो अभी ये वाले यूआरएल को ये वाला एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट असाइन हो जाएगा, एंड नाउ इट विल चेंज द पाथ टू दिस। अभी ये जो पाथ चेंज होगा उसकी वजह से it should come in app.js. It will come in app.js, और app.js में it will match with this path. अभी ये path की वजह से क्या रेंडर होने वाला है? So it will render this particular object, और उसमें हमने एक प्रॉपर्टी लिखा हुआ है जो है अपडेट एम्प्लॉय हैंडलर। तो ये प्रॉपर्टी हमें लगेगा अभी एम्प्लॉय एडिट में। तो अभी एम्प्लॉय एडिट में whenever I will come over here, so we are writing we are in update function in update function, and now here can we get the data जो modified है inside the state? modified data हमें state object में मिलता है क्या पूरा? तो yes, अभी ये state object में जैसे हमने यहाँ पे चेक किया है वैलिडिटी के लिए, तो वो भी करेंगे। एंड ये जो हमने स्टेट डॉट प्रॉप्स किया है एड एम्प्लॉय हैंडलर, उसकी जगह पे हमें लिखना पड़ेगा अपडेट एम्प्लॉय हैंडलर नाउ। ओके तो ये मैं कॉपी पेस्ट कर रही हूं अभी। देन वी ऑल्सो वांट टू रिमूव द वैल्यूज फ्रॉम द फॉर्म, बट वो हम टाइप करेंगे। सो अभी हम सिर्फ क्या कर रहे हैं? सो आई एम कॉपी पेस्टिंग दिस वैलिडेशन इन एम्प्लॉय एडिट। एम्प्लॉय एडिट में अभी यहाँ पे हमें क्या लिखना है? that if it is equal to blank, if ename is equal to blank, and if salary is equal to blank, तो हमें लिखना है all fields are mandatory and return.
ओके, ऑल फील्ड्स आर मैंडेटरी एंड रिटर्न, ये हमें लिखना है। सो ये सबको पता है, हमें वैलिडेशन करना है। और वैलिडेशन होने के बाद अगर वैलिडेशन ट्रू हुआ तो क्या करना है? सो डू वी वांट टू एक्चुअली पास दिस पर्टिकुलर स्टेट फॉर अपडेटिंग इन app.js, एंड उसके लिए हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? दिस डॉट props डॉट, एंड हमने क्या नाम दिया है? प्रॉपर्टी का नाम क्या है वो देखते हैं। अपडेट एम्प्लॉय हैंडलर, तो ये फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। अपडेट एम्प्लॉय हैंडलर, और उसको हमें ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा ना, दिस डॉट स्टेट, इसको हमें ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा, द वन विच वी वांट टू डिस्प्ले। डू यू अग्री? जो हमें अपडेट करना है वो ऑब्जेक्ट हमें इसको पास करना पड़ेगा। अभी पास होने के बाद डू वी वांट टू क्लियर द फॉर्म नाउ, और वो हम कैसे करते हैं? दिस डॉट सेट स्टेट, और फिर इसके अंदर हम लिखते हैं empid कोलन ब्लैंक, फिर हम लिखेंगे ename कोलन ब्लैंक, और फिर हम लिखेंगे सैलरी कोलन ब्लैंक या 0, जो भी लिखना है वो। सो विल वी क्रिएट, वी विल इनिशियलाइज द फॉर्म, एंड उसके बाद हमें जाना है बैक टू ओरिजिनल पेज। तो इधर हमें क्या लिखना है? दिस डॉट props डॉट हिस्ट्री डॉट पुश, और इधर हमें लिखना है स्लैश। So this is how you will have to write update function. So now I am repeating. क्या कर किया हमने? Now if we have employee card, और employee card पे हमने यहाँ पे क्लिक किया, तो ये will it generate this URL? It will generate this URL. अभी ये URL की वजह से वो जाएगा app.js में, और कौन सा कंपोनेंट दिखाएगा हमें? एम्प्लॉई एडिट। अभी एम्प्लॉय एडिट में जो भी डेटा आया है वी विल हैव टू रिट्रीव इट, और डेटा यूआरएल से आ रहा है, तो यूआरएल से डेटा रिट्रीव करने के लिए हमें ये लोकेशन ऑब्जेक्ट यूज करना पड़ता है, जिसमें से हमने स्टेट रिट्रीव किया और एम्प्लॉय रिट्रीव किया, और वो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे स्टेट को असाइन किया। तो ये हमने क्यों किया? सो असाइन द ऑब्जेक्ट टू स्टेट to display it in form. Assign the object to state to display it in form, right? अभी वो अगर हमें करना है तो we will have to write it over here. तो अभी imagine करो कि ये हमारा पेज है, ये हमारा पेज है, और जैसे ही हम इधर लिखेंगे लोकल होस्ट कोलन 3000, जैसे ही हम ये यहाँ पे स्लैश यूज करेंगे तो कौन सा पेज दिखना चाहिए? प्रियांशु, कौन सा पेज दिखना चाहिए? विल इट शो मी सम आईडी? फिर हमें नाम दिखाएगा, और उसके सामने हमें 2 आइकॉन्स दिखेंगे। ये पेज दिखेगा बराबर, और इसके सामने हमें 2 आइकॉन्स दिखेंगे। एक आइकॉन दिखेगा वो पेन का, और दूसरा आइकॉन दिखेगा एक डस्टबिन का, बराबर। तो यहाँ पे एक पेन का आइकॉन दिखा हमें, और एक डिलीट का आइकॉन दिखेगा। यस और नो? नाउ व्हेनेवर आई विल क्लिक ऑन दिस पेन आइकॉन, तो यूआरएल क्या चेंज होगा? तो इसको अभी हमने लिंक टू किया है, तो विल इट चेंज द यूआरएल टू स्लैश एडिट कोलन, और इधर अगर हमने 113 दिया है तो इट विल बिकम 11123। ओके, तो अगर मैंने
यहाँ पे क्लिक किया तो यूआरएल चेंज हो जाएगा, इसको edit 1 2 3, ओके। और इसके साथ साथ इट विल ऑल्सो पास दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, पूरा सैलरी भी आएगा। along with that it will also pass this object by what name, हमने नाम क्या दिया है, स्टेट। बाय व्हाट नेम, स्टेट। स्टेट के अंदर हमने क्या भेजा, एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय को हमने एक्चुअल एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को असाइन किया। विल इट पास दिस एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट ओवर हियर, एंड इसमें सैलरी भी आएगी जो हम उधर डिस्प्ले नहीं कर रहे हैं। तो ये कोड हमने लिखा है, जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये यूआरएल जनरेट करो और ये ऑब्जेक्ट ये नाम से पास करो, ये डेटा हमने लिखा है। कहाँ पे लिखा है, सो नाउ इफ यू गो टू एम्प्लॉय कार्ड, एम्प्लॉय कार्ड में हमने लिंक टू किया क्या, कि इस पे क्लिक किया तो ये वाला यूआरएल जनरेट करो। आर वी जनरेटिंग दिस यूआरएल, एंड आर वी ऑल्सो सेइंग कि ये प्रॉप्स में जो एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट है वो पूरा का पूरा पास करो इधर, जो हम इधर डिस्प्ले कर रहे हैं, राइट। तो ये यूआरएल के साथ आईडी भी आएगा और डेटा भी आएगा। एंड इसलिए जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इज इट गिविंग मी दिस यूआरएल विथ एम्प्लॉय आईडी, एंड इज इट ऑल्सो गिविंग मी दिस ऑब्जेक्ट हियर। तो यस, अभी ये ऑब्जेक्ट की वजह से कौन सा फॉर्म दिखने वाला है हमें, एम्प्लॉय एडिट। एम्प्लॉय एडिट में हमने एम्प्लॉय ऐड जैसा ही फॉर्म लिखा है, और वो फॉर्म के अंदर हमारा है टेक्स्ट बॉक्स फॉर आईडी, ये दूसरा टेक्स्ट बॉक्स है नेम के लिए, ये तीसरा टेक्स्ट बॉक्स है सैलरी के लिए, और इसके अंदर एक बटन है, और ये बटन पे हमने लिखा है अपडेट एम्प्लॉय। बराबर। अभी ये जो टेक्स्ट बॉक्सेस है, ये टेक्स्ट बॉक्सेस, एवरी टेक्स्ट बॉक्स इज इट एसोसिएटेड विथ दिस डॉट स्टेट डॉट empid, बराबर। अभी ये किसके साथ है, दिस डॉट स्टेट डॉट ename। ये किसके साथ है, दिस डॉट स्टेट डॉट सैलरी, इसके साथ एसोसिएटेड है। सो अगर हमने ये वाला जो आईडी है वो अगर इसको असाइन किया, ये वाला नेम है वो इसको असाइन किया, और ये वाला सैलरी है इसको असाइन किया, तो विल इट अपीयर इन दिस टेक्स्ट बॉक्स। ऐसे असाइनमेंट किया तो विल इट अपीयर इन द टेक्स्ट बॉक्स, यस। एंड इसीलिए नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया, दैट इनसाइड एम्प्लॉय एडिट कंस्ट्रक्टर, वो जो स्टेट एम्प्लॉय आ रहा था वो हमने रिट्रीव किया। कौन से ऑब्जेक्ट से रिट्रीव किया, लोकेशन। ये जावास्क्रिप्ट का प्रीडिफाइंड ऑब्जेक्ट है विंडोज ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल में। विंडोज का जो BOM है, ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल, हमने विंडो देखा है, डॉक्यूमेंट है, लोकेशन है, नेविगेटर है, हिस्ट्री है। यू रिमेम्बर ये डॉम के ऑब्जेक्ट्स है, उसको BOM बोलते हैं, ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल। उसमें ही ये लोकेशन ऑब्जेक्ट है जो हमें URL के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो URL से जो स्टेट आ रहा है और उसके अंदर जो एम्प्लॉय है, दैट वी आर डिस्प्लेइंग इट हियर इन द console.log। अभी इसी से हमने एम्प्लॉय आईडी रिट्रीव किया, ये वेरिएबल को असाइन किया, ईनेम रिट्रीव किया, ये वेरिएबल को असाइन किया, और सैलरी रिट्रीव किया और ये वेरिएबल को असाइन किया। And then we are assigning those values in the state. So are we assigning the values of this employee into the state here in constructor? So yes, and because of that what will happen, it should appear in the form. So अभी ये values हमने assign किए तो यहाँ पे हमें form में value दिखेगा। अभी update पे click किया तो क्या होना चाहिए, तो अगर मैंने इधर 111 ऐड किया तो ये नाम में भी इधर मुझे 111 दिखना चाहिए।
बट अगर हमें ये नाम में दिखना चाहिए तो हमें क्या अपडेट करना पड़ेगा? EMP-ARR हमें अपडेट करना पड़ेगा. डू यू अग्री? एम्प्लॉय एरे हमें अपडेट करना पड़ेगा. अभी ये एम्प्लॉय एरे जो है, इज इट अ एरे? और उसमें ये पहला ऑब्जेक्ट, उसमें एक पहला ऑब्जेक्ट है, फिर इसमें दूसरा ऑब्जेक्ट है, फिर इसमें तीसरा ऑब्जेक्ट है. अभी ये जो ऑब्जेक्ट है इधर, वो हमें रिप्लेस करना है क्योंकि इस पे इसके सामने हमने अपडेट किया. सो कैन आई से ये एम्प्लॉय एरे को मैप करो, मतलब क्या हर ऑब्जेक्ट के लिए एक ऑब्जेक्ट दे दो, इसके लिए ये एक ऑब्जेक्ट दे दो. तो ये जो ऑब्जेक्ट है उसके लिए हमने बोला है जो है वही दे दो, बट इसके लिए हमने क्या लिखा है? डॉट 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 EMP लिखा है, राइट? So whenever we will reach to this particular object, we want to overwrite it with this new object और बाकी के ऑब्जेक्ट हमें वैसे ही रखने हैं. बराबर, बाकी के ऑब्जेक्ट हमें वैसे ही रखने हैं. ये कोड हमें लिखना पड़ेगा. और ये कब एग्जीक्यूट होना चाहिए? whenever I will click on this particular button. तो अभी ये बटन पे अगर मैंने क्लिक किया, ये बटन पे, तो is it giving call to this update function? Is it giving call to this update function? तो yes. अभी ये update function कॉल होगा तो यहाँ पे क्या होगा? It will call this particular function. और इसमें हम क्या कर रहे हैं? देखो, इवेंट प्रिवेंट डिफॉल्ट. तो सबमिट बटन की वजह से पेज हमें रिफ्रेश नहीं करना है, तो इवेंट प्रिवेंट डिफॉल्ट. फिर हमने क्या किया? वैल्यू चेक किए फॉर्म के, वैल्यू चेक किए फॉर्म के, और फिर उसको अगर एक भी वैल्यू ब्लैंक है तो लिखा ऑल फील्ड्स आर मैंडेटरी, और नहीं है तो आर वी कॉलिंग द फंक्शन कॉल्ड एज एड अपडेट एम्प्लॉय हैंडलर, एंड उसको हमने ये स्टेट पास किया है क्या, जो मॉडिफाइड स्टेट है. क्योंकि अभी ये जो अपडेट फॉर्म है इसमें जो डेटा हम चेंज करेंगे, विल इट गेट एडेड इनटू दिस? यहाँ पे कुछ चेंज किया तो विल इट गेट एडेड इनटू दिस? तो यस. तो ये जो हमारा स्टेट है, इट कंटेन्स न्यू ऑब्जेक्ट जो हमें इधर पास करना है अभी, एंड इसलिए आर वी गिविंग कॉल टू अपडेट एम्प्लॉय हैंडलर हियर? आर वी गिविंग कॉल टू एम्प्लॉय हैंडलर हियर? तो यस. और उसको हमने जो अपडेटेड डेटा है वो पास किया. अभी ये प्रॉप्स में अपडेट एम्प्लॉय हैंडलर जो है वो हमने क्या लिखा है? सो इफ यू चेक इन द app.js, इधर हमने एम्प्लॉय एडिट में अपडेट एम्प्लॉय हैंडलर के लिए कौन सा फंक्शन कॉल करने के लिए बोला है? पेरेंट में अपडेट EMP. सो बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी, when you will call this dot update employee handler, is it actually calling this function? Because of that reference, it is actually calling this function. और जो updated employee है वो इधर आएगा. And now we are overwriting the matched object with the new object, और बाकी के ऑब्जेक्ट हम वैसे ही रख रहे हैं. बाकी के ऑब्जेक्ट हम वैसे ही रख रहे हैं. एंड बिकॉज ऑफ दैट हमारा एरे अपडेट होगा, और एरे अगर अपडेट हुआ तो हमें आउटपुट में अभी दिखना चाहिए. सो नाउ वी आर सेइंग कि एम्प्लॉय एडिट में ये जो कोड है, विल इट एक्चुअली अपडेट द एरे? अभी एरे अपडेट हो गया, फिर हमें फॉर्म को एम्प्टी करना है तो ये लिखा, और इसके बाद हमें जाना है ओरिजिनल पेज पे. सो इसलिए इधर स्लैश ऐड कर दिया. सो दिस इज हाउ आवर अपडेट फंक्शन शुड वर्क. Have you understood कैसे करना है अपडेट फंक्शन? Any questions? Line 62. अभी यहाँ पे देखो, हमारे पास ये एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट है, एंड दिस इज अवर लाइन 62. अभी ये मैप फंक्शन क्या करेगा? ये मैप फंक्शन पहला ऑब्जेक्ट देखेगा, इसका वैल्यू है 123, और हमने ये जो नया एम्प्लॉय भेजा है उसका भी वैल्यू है 123. नाउ इज इट मैचिंग? 123 इज इट मैचिंग विथ 123?
तो यस, और इसलिए हमने कौन सा ऑब्जेक्ट रिटर्न किया, नया वाला। तो अभी यहाँ पे ओल्ड ऑब्जेक्ट चला जाएगा एंड इट विल स्टार्ट पॉइंटिंग टू दिस न्यू ऑब्जेक्ट। बट जब ये ऑब्जेक्ट आएगा जिसमें 111 है और हमारे पास 123 है, इज इट मैचिंग? नो। सो विल इट रिटर्न द सेम ऑब्जेक्ट? यहाँ पे हमने लिखा है वही ऑब्जेक्ट को रिटर्न करो, तो विल इट कीप दिस ऑब्जेक्ट एज इज? यस। फिर अगला ऑब्जेक्ट आएगा, बिकॉज ऑफ मैप लूप चलेगा ना, फिर अगला ऑब्जेक्ट आएगा ई में, इज इट मैचिंग? नो। तो इसलिए क्या रिटर्न होगा, ई। सो विल इट रिटर्न न्यू ऑब्जेक्ट ओनली फॉर द मैच्ड डेटा एंड अदरवाइज एवरी टाइम इट विल कीप द ओल्ड ऑब्जेक्ट एज इज? एंड बिकॉज ऑफ विच ये जो डेटा है वो चला जाएगा और इसकी जगह पे नया डेटा आएगा और ये जो डेटा है वो वैसे ही रहेगा। नाउ इज इट क्लियर हाउ इट इज वर्किंग? तो दिस इज हाउ यू विल हैव टू राइट द कोड। और अभी यहाँ पे हमने क्या लिखा है, अपडेट ईएमपी, जिसमें हमने ये एरे के वैल्यूज को सेट किया है। एंड वंस दिस इज डन, ये पूरा होने के बाद फिर आगे क्या किया है, आगे हमने यूआरएल चेंज कर दिया टू स्लैश। तो स्लैश यूआरएल चेंज करेंगे तो वापस हम आ जाएंगे एम्प्लॉय लिस्ट में और हमें अप टू डेट डेटा दिखना चाहिए। सो दिस इज हाउ यू विल हैव टू राइट दी एड, एडिट मतलब अपडेट कैसे लिखना है। तो वी विल हैव टू ट्राई इट नाउ। कुछ एरर्स आते हैं क्या, वो देखना पड़ेगा। सो नाउ इट इज सेइंग लिंक इज नॉट डिफाइंड। तो अभी हमने एम्प्लॉय कार्ड में लिंक यूज किया है, तो वहां पे हमें लिंक ऐड करना पड़ेगा। तो एम्प्लॉय कार्ड में हमने ये जो लिंक लिखा है, तो बिकॉज ऑफ दैट यू विल हैव टू इंपोर्ट दैट लिंक। ये पहला एरर आया। तो इधर अभी क्या ऐड करना है, इंपोर्ट लिंक फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। हमें ये लिंक को अपडेट करना पड़ेगा फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, ये एक करना है। और हमने यहाँ पे app.js में हमने app.js में अभी ये एडिट कंपोनेंट डाला है, ये वाला। तो डू वी नीड टू इंपोर्ट दिस ऑल्सो? इसको भी इंपोर्ट करना पड़ेगा इधर app.js में। जैसे बाकी के कंपोनेंट किए हैं वैसे ही यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा इंपोर्ट एम्प्लॉय एडिट फ्रॉम कोट्स में डॉट स्लैश कंपोनेंट स्लैश एम्प्लॉय एडिट, ये हमें लिखना पड़ेगा। ओके अभी देखते हैं और कुछ एरर है क्या। So this is how we are writing it. अभी यहाँ पे देखते हैं। So are we getting this particular form? अभी इस पे क्लिक किया तो I should be able to get this link over here, edit 1 2 3 4, and if I am refreshing it, is it coming here? The data is coming over here. Yes समीर, अगर हमने लोकेशन डॉट रीलोड डाला तो वो हो ही जाएगा, बट बिना वो भी चलता है एक्चुअली। आई विल हैव टू चेक इज देयर एनी अदर डिपेंडेंसी करना है या अदरवाइज हम वो डाल के देखेंगे बाद में समीर। ओके सो नाउ वी आर एडिंग दिस आईडी। आईडी हमें चेंज नहीं करना है। फिर हमने ये नेम डाला, फिर सैलरी डाला, एंड इफ आई क्लिक ऑन अपडेट, अभी अपडेट किया तो इट शुड चेंज द डेटा टू स्लैश। एक्चुअली it should change the URL to slash. अभी स्लैश किया तो we will have to check is it updating the
डेटा। तो एरर आया है क्या, देखते हैं F12 में कुछ। So we will try once again. I'm clicking on update. So actually can you see इधर URL change नहीं हो रहा है, तो I will have to check why that URL is not getting changed. Okay. So if we are clicking on this particular button, तो हमने function कौन सा call किया है, this dot update. एंड अपडेट फंक्शन में हमने यहाँ पे क्या कॉल किया है, ओके, इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट. तो दिस विल डू व्हाट, दिस विल डू व्हाट, इट विल स्टॉप रिफ्रेशिंग पेज. तो वो स्पेलिंग गलत था प्रिवेंट डिफॉल्ट का, वापस एक बार करके देखते हैं. वो प्रिवेंट डिफॉल्ट का स्पेलिंग गलत था, इसलिए वो पेज रिफ्रेश हो रहा था. सो नाउ इफ आई क्लिक ऑन दिस and if I am modifying the value here and if I click on update, so is it changing the URL to slash now and refresh किया, तो are we getting these values modified here? Now if you notice सबका ID अभी सेम ही आया है, इसलिए सारे अपडेट हो गए क्या. अभी मैं डिलीट करती हूँ तो सारे डिलीट हो जाएंगे. Now let's add one more employee. और यहाँ पे कुछ नेम डाला और यहाँ पे कुछ वैल्यू डाला एंड इफ आई क्लिक ऑन सबमिट तो URL चेंज होगा और इधर हमारा ऐड हुआ. अभी और एक एम्प्लॉय ऐड करती हूँ. एंड नाउ इफ आई एम क्लिकिंग ऑन सबमिट तो इट इज एडिंग इट ओवर हियर. सो आई विल हैव टू चेक ये ब्राउजर राउटर का क्यों एरर आ रहा है, वो मैं चेक करती हूँ बाद में. बट अभी हमारा URL ये जो है आईडी अलग अलग है, अभी ये दोनों का आईडी सेम आया, तो हम ये अपडेट करेंगे. सो नाउ इफ आई क्लिक ऑन अपडेट तो इट इज शोइंग मी द पेज हियर. एंड इधर अगर मैंने 1 2 3 डाला और इधर अगर मैंने 4 4 4 डाला एंड इफ आई क्लिक ऑन अपडेट तो इज इट गेटिंग अपडेटेड ओवर हियर. अभी वो सैलरी हमें दिख नहीं रहा है क्योंकि हमने इधर दिखाया नहीं है. यस शुभम, एज आई सेड ये रिफ्रेश करना पड़ रहा है, वो एक्चुअली नहीं करना पड़ेगा, बट मैं चेक करूंगी कि इज इट एनी प्रॉब्लम विथ वर्जन की वजह से हो रहा है या कुछ और इंपोर्ट करना है. ये हमारा प्रोग्राम का एरर नहीं है. इसके लिए हमें या तो कोई लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी या कहीं पे वर्जन चेंज करना पड़ेगा, बट दैट आई विल हैव टू चेक. ओके शुभम. तो फिलहाल हमने राउटर क्यों यूज किया, यहाँ पे URL को मॉडिफाई करने के लिए हमने राउटर यूज किया. अभी व्हाई इट इज आस्किंग मी टू रिफ्रेश, दैट आई विल चेक. So are you getting idea about how to use routing? सिर्फ ये रिफ्रेश नहीं करना चाहिए, उसके लिए क्या करना है, that I will check and I will come back. So have you understood how to write this CRUD operation with React routing? हमने यूज किया React routing यूज किया, फिर हमने डिलीट करके देखा, डिलीट कैसे करते हैं वो देखा, अपडेट कैसे करते हैं वो कोड लिखा, बट अभी हमने इसको चेंज कर दिया है वाया राउटिंग. सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट हाउ टू यूज CRUD ऑपरेशन बट इन द एरे. एक्चुअल में हमें ये सब कुछ कहाँ करना है, MongoDB में करना है,
और उसके लिए हमें कौन सा एप्लीकेशन लगेगा, नोड जेएस का एप्लीकेशन लगेगा। आर यू विथ मी? तो हम क्या करेंगे, अभी और एक सिंपल एप्लीकेशन लिखेंगे जिसमें हम राउटिंग का और एक एग्जांपल देखेंगे, हाउ टू डू राउटिंग। ये अभी हमने हमारे प्रोग्राम में किया। सो कैन वी रीडायरेक्ट यूज नहीं कर सकते खिलेश? वी विल नॉट यूज रीडायरेक्ट। Any questions? Any questions? So this is how we have used the routing. So shall we write one more very simple example जिसमें हम routing देखेंगे एक बार और। बट एक्चुअल में आपको राउटिंग ऐसे ही यूज करना पड़ेगा जैसे मैंने दिखाया। मैं और एक सिंपल एग्जांपल आपको दिखाती हूँ, बट राउटिंग हमें ऐसे ही यूज करना है। सो हाउ टू डू इट? So let's create one more example. So shall I create a so it is taking little time to create the application. So now our application is ready. और इधर अगर हमने npm स्टार्ट किया
तो ये वाला एप्लीकेशन रन होगा। I made a mistake. तो यहाँ पे होना चाहिए था हमारा पूरा कोड, तो वो मैंने गलती से अंदर डाला था। सो नाउ हियर आई विल हैव टू डू cd डॉट डॉट, एंड यहाँ पे अभी हमें क्या करना है, cd क्या नाम है हमारे डेमो का, रिएक्ट राउटिंग डेमो, राइट? So this is our new demo जो हमें रन करना है। और इधर अगर हमने किया npm start, तो will it start the application? So it is starting the application, and is it showing us this application? तो yes, अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो इनसाइड रिएक्ट राउटिंग डेमो वी हैव app.js, और ये app.js का सब कुछ अगर मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया, ओके, app.js का हमने सब कुछ यहाँ पे डिलीट कर दिया, तो क्या करना है, सो नाउ हियर वी विल हैव टू ऐड, अभी पहले हमें क्या करना पड़ेगा, रिएक्ट राउटर डॉम को इंपोर्ट करना पड़ेगा, यस और नो? व्हाट इज द स्टेप 1? रिएक्ट राउटर को इंस्टॉल करो। कैसे करोगे इंपोर्ट? आई एम वेटिंग फॉर द कमांड। हाउ यू विल इंपोर्ट राउटिंग? npm इंस्टॉल, और क्या इंपोर्ट करना है हमें, npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डॉम, एंड फिर क्या लिखना है, --- सेव।
So this will import DOM. Yes, actually हमें वो 5.2 वर्जन डालना था. Perfect, मयूर. So this is how you will have to import install the specific version of the router. Yes, it will work, but वो शायद सेव नहीं होगा अभी, इसलिए मैंने उसको टर्मिनेट किया है. So over here we are installing the DOM. अभी now what we want to do? अभी यहाँ पे हमने DOM इंस्टॉल किया है, तो इधर क्या क्या इंपोर्ट करते हैं हम? परफेक्ट. तो यहाँ पे अभी क्या लिखना है? इंपोर्ट और क्या लिखना है? स्विच. एंड कहाँ से करना है? फ्रॉम यस. अभी इसके बाद क्या करना है? व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? इसके बाद क्या करना है? डिपेंडेंसीज अपने आप आ जाएंगे. अभी हमने @ किया है ना. कैन यू सी? हमने @ यूज किया है तो डिपेंडेंसीज अपने आप आ जाएंगे. यशस्वी, अभी क्या लिखना है? सो नाउ हियर डू वी नीड टू ऐड राउटर?
Samir, I have already checked, नहीं हो रहा है वो. I have already added with router also. तो वो प्रॉब्लम मैंने चेक किया है ऑलरेडी. ओके, आपके मशीन पे हुआ है क्या चेंज? तो मैंने चेक किया है वो ऑलरेडी. अभी इसके बाद हमें रूट्स डालने हैं सारे. अभी रूट्स डालने के लिए हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ता है? स्विच. स्विच क्यों लिखना है? कैन एनीबडी टेल मी स्विच क्यों लिखना है? टू अवॉइड द अननेसेसरी चेकिंग. और स्विच के अंदर क्या लिखना है? स्विच के अंदर क्या लिखना है? तो पाथ इज इक्वल टू, और यहाँ पे हमें यूआरएल देना है कि कौन सा यूआरएल है. तो सपोज हमने यहाँ पे लिखा होम. तो होम पे क्लिक किया तो हमें कौन सा कंपोनेंट इंस्टॉल करना है, तो वो कंपोनेंट का नाम हमें इधर देना पड़ता है. सो यू कैन यूज कंपोनेंट. अभी हम सिंपल से कंपोनेंट यूज करने वाले हैं, तो वी विल यूज द सिंपल कंपोनेंट नेम. बट अगर प्रॉपर्टीज यूज करने हैं तो हमें रेंडर यूज करना पड़ेगा. ओके, सो नाउ हियर वी वांट टू यूज विच कंपोनेंट, वो हमें देना है. तो अभी यहाँ पे हम एक होम कंपोनेंट बनाएंगे जिसमें सिर्फ टाइप करेंगे होम कंपोनेंट. ओके, यहाँ पे राउटर डाला है, इधर स्विच डाला है. क्यों एरर आ रहा है? इधर एंड नहीं किया. ओके, सो हियर वी आर राइटिंग पाथ. अगर स्लैश होम है तो हमें यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट दिखाना है वो हमने डाला. अभी और एक रूट डाल सकते हैं क्या? तो यहाँ पे अगर मैंने डाला अबाउट, और फिर हम कौन सा कंपोनेंट यूज करेंगे? एक और एक कंपोनेंट लिखेंगे अबाउट, एंड एक रूट होगा स्लैश. which will be our index component. Okay, so can we add it like this? Can we add it like this? अभी क्या करना है? अभी सारे अलग अलग कंपोनेंट लिखने पड़ेंगे. कैसे लिखेंगे? So now here we will have to write exact. क्यों लिखना है ये exact? हमने क्यों लिखा मयूर? Perfectly specified. Exact क्यों लिखा हमने?
तो हमें स्पेसिफिक पाथ लिखना है इसलिए, राइट? तो ओवर हियर वी आर राइटिंग रूट, अभी स्लैश करना है और यहाँ पे हमें कंपोनेंट दिखाना है, इंडेक्स कंपोनेंट. शैल वी क्रिएट अ फोल्डर हियर? परफेक्टली स्पेसिफाइड संकेत, स्पेसिफिक पाथ सिलेक्ट करने के लिए. सो कैन आई क्रिएट अ फोल्डर हियर कंपोनेंट? और इसके अंदर क्या हम इधर इंडेक्स कंपोनेंट ऐड कर सकते हैं? और इंडेक्स कंपोनेंट में हम एक वेरिएबल बनाएंगे, कॉन्स्ट इंडेक्स कंपोनेंट. ये इंडेक्स कंपोनेंट हम बनाएंगे और उसमें कुछ सिर्फ हम टाइप करेंगे, राइट? तो क्या लिखेंगे? अगर स्लैश है तो हमें क्या दिखाना है? दैट वी विल टाइप ओवर हियर. अभी ये क्लास कंपोनेंट भी चलेगा या फिर क्लास कंपोनेंट भी चलेगा या फिर फंक्शनल कंपोनेंट भी होगा. समीर, व्हाट यू आर सेइंग इंडेक्स बाय डिफॉल्ट ही है करके? आई डिडंट गेट यू व्हाट यू आर सेइंग. अभी यहाँ पे फंक्शन में डू वी नीड टू राइट सम रिटर्न? मैम वो पब्लिक फोल्डर में एक एचटीएमएल फाइल रहती है ना इंडेक्स बाय डिफॉल्ट. बट वो फाइल है ना, ये हम कंपोनेंट बना रहे हैं. आर वी क्रिएटिंग इंडेक्स फाइल? मैम वो स्लैश पे डायरेक्ट वही रन होती है ना, index.html. index.html होगी, बट अभी यहाँ पे हमें अलग अलग वैल्यू दिखानी है ना, हाँ यस यस ये div के अंदर. यस. अभी ये div के अंदर डेटा कौन दिखाएगा? index.js दिखाएगा. ओके. अभी index.js में हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि हमें ऐप दिखाना है, यस और नो? यस. तो वो कंपोनेंट यहाँ पे हम शो करेंगे. हाँ. तो अभी ऐप के अंदर हमने क्या लिखा? ऐप के अंदर हमने लिखा कि अगर रूट ये है तो ये वाला कंपोनेंट दिखाओ, ये है तो ये वाला कंपोनेंट दिखाओ. तो ये यू रूट आया तो ये कंपोनेंट का जो आउटपुट है वो कहाँ जाएगा? इधर आएगा. क्लियर? तो अभी हमने इंडेक्स फाइल नहीं बना रहे हैं, मैंने ये नाम सिर्फ इंडेक्स डॉट कंपोनेंट दिया है. और इसके अंदर हम क्या लिखेंगे? h1 इन होम कंपोनेंट. ओके, h1 इन होम कंपोनेंट. और जब भी हम स्लैश यूआरएल भेजेंगे तो उसने सॉरी यहाँ पे हमने नाम क्या दिया है? इंडेक्स कंपोनेंट. ओके. ऐसे ही क्या हम होम कंपोनेंट भी बना सकते हैं? तो बना सकते हैं. और ये इंडेक्स कंपोनेंट का है, वही कॉपी पेस्ट करेंगे इधर. और इधर क्या लिखना है? इन होम कंपोनेंट. ओके. अभी तीसरा कौन सा लिखा है हमने? अबाउट कंपोनेंट. सो कैन वी क्रिएट अ न्यू फाइल और इधर लिख सकते हैं अबाउट कंपोनेंट डॉट जेएस. तो इधर लिखा हमने अबाउट कंपोनेंट. और हर इसमें हमें एंड में क्या लिखना है? व्हाट शुड आई राइट? एक्सपोर्ट डिफॉल्ट अबाउट कंपोनेंट. और ये हमें सारे फाइल्स में लिखना पड़ेगा.
होम कंपोनेंट। तो ये है इंडेक्स कंपोनेंट, ये है हमारा होम कंपोनेंट, और ये है हमारा अबाउट कंपोनेंट, राइट। अभी app.js में अगर हमने ये राउटर नहीं लिखा, आई विल चेक इट वंस अगेन। इंडेक्स कंपोनेंट में हमने नाम क्या दिया है, इंडेक्स कंपोनेंट, एंड यहाँ पे हमने लिखा है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट इंडेक्स कंपोनेंट। फिर हम होम कंपोनेंट में देखते हैं, इधर होम कंपोनेंट लिखा है और इधर भी होम कंपोनेंट लिखा है। एंड अबाउट कंपोनेंट में हमने यहाँ पे अबाउट कंपोनेंट लिखा है एंड नाउ इट इज ओके। अभी ये app.js में अगर हमने ये राउटर नहीं लिखा और इधर मैंने डायरेक्टली लिखा इंडेक्स कंपोनेंट, होम कंपोनेंट, एंड अबाउट कंपोनेंट, ऐसे अगर हमने डायरेक्टली लिखा, और इधर अभी इंपोर्ट भी करना पड़ेगा हमें, तो अगर हमने ऐसे लिखा तो विल इट शो मी ऑल एट वन गो, सारे के सारे आ जाएंगे क्या? तो ये सारे के सारे आ जाएंगे क्योंकि हमने अभी राउटिंग यूज नहीं किया है, एंड इसीलिए अभी ये वाला कोड अगर हमने रन किया error, parsing error, identifier router has already been declared. अभी एरर क्या आया है, आइडेंटिफायर राउटर हैज बीन ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, लाइन 4। ठीक है, अभी फिलहाल अरे ये डबल ऐप अपने आप ऐड हुआ है इधर, दिस इज बिकॉज ऑफ VSS, समटाइम्स ये ऐसे ऐड हो जाता है। Now is it showing me all the components at one go? सारे दिखा रहा है क्या? राइट, ओके। अभी हमें सारे नहीं दिखाने हैं, इसलिए हमने क्या किया, इसको डिलीट कर दिया क्योंकि हमें सारे नहीं दिखाना है। तो वैसे ही हमने पहले वाले एग्जाम्पल से भी सब कुछ डिलीट किया और उसकी जगह पे क्या ऐड किया, उसकी जगह पे क्या ऐड किया, राउटर ऐड किया और स्विच ऐड किया।
और फिर हमने बोला ये यूआरएल आया तो ये कंपोनेंट दिखाओ, ये यूआरएल आया तो ये कंपोनेंट दिखाओ, ये यूआरएल आया तो ये कंपोनेंट दिखाओ. नाउ इफ वी रन द कोड तो वो नाउ इफ वी रन द कोड तो वो पूरा दिखाएगा क्या हमें, या विल इट शो मी ओनली वन कंपोनेंट नाउ. अभी ये जो कंपोनेंट में हमने सिर्फ टेक्स्ट डाला है, कैन इट बी लिस्ट ऑफ डेटा, या कैन इट बी फॉर्म ऑफ डेटा, और कैन इट बी सम कार्ड विच वी वांट टू शो, ऐसे कुछ भी हो सकता है ना ये यूआरएल में. अभी वैसे ही इधर अगर मैंने स्लैश के जगह पे क्या टाइप किया, होम टाइप किया, तो विल इट शो मी होम कंपोनेंट, तो यस. और यहाँ पे अगर हमने यूआरएल भेजा, यहाँ पे यूआरएल अगर हमने भेजा अबाउट, तो कौन सा कंपोनेंट दिखेगा, अबाउट. तो मतलब हमें राउटिंग यूज करना है तो क्या करना है, तो इधर का यूआरएल चेंज करना है. और इधर का यूआरएल चेंज करना है तो हाउ टू यूज लिंक टू टैग, वो मैंने आपको हमारे एप्लीकेशन में दिखाया. आर यू विथ मी? तो ये राउटर में अगर हमने ये पूरा डायरेक्टली लिखा होता तो हमारा कोड सारे के सारे कंपोनेंट एक ही साथ दिखाता था, बट हमें वैसे नहीं करना है, इसलिए हमने अलग अलग रूट के लिए अलग अलग कंपोनेंट दिखाए. एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज राउटिंग. तो अभी ये जो है यूआरएल जो हम अभी मैन्युअली चेंज कर रहे हैं, तो कैन आई शो वन मेनू हियर, और पहले मेनू पे क्लिक करेंगे तो होम आएगा, दूसरे पे क्लिक करेंगे तो अबाउट आएगा, तीसरे पे क्लिक करेंगे तो समथिंग और आएगा. ऐसे कुछ मेनू बार डाल सकते हैं. या फिर एक फॉर्म पे यहाँ पे जो आइकॉन था उस पे क्लिक किया तो ये यूआरएल चेंज होगा. ऐसे टाइप के कोड अगर हमने लिखे तो कैन वी लिंक मल्टीपल कंपोनेंट्स विथ ईच अदर, कैन वी लिंक मल्टीपल कंपोनेंट्स विथ ईच अदर. तो वैसे ही कोड हमने हमारे एम्प्लॉय राउटिंग में लिखा है. अभी एम्प्लॉय राउटिंग में हमने क्या लिखा, एम्प्लॉय राउटिंग में वी हैव मॉडिफाइड आवर app.js फाइल, और app.js फाइल में हैव वी एडेड स्विच, और यहाँ पे हमने लिखा है कि अगर पाथ स्लैश आया तो एम्प्लॉय लिस्ट दिखाओ, ऐड आया तो एम्प्लॉय ऐड दिखाओ, और अगर एडिट आया तो एम्प्लॉय एडिट दिखाओ. दिस इज व्हाट वी हैव रिटन. ओके, तो अभी स्लैश आया तो इज इट डिस्प्लेइंग अस एम्प्लॉय लिस्ट, ये वाला हमें दिखा रहा है, बराबर. बट अभी एम्प्लॉय लिस्ट में हमने क्या किया, अभी एम्प्लॉय लिस्ट में वी सेड दैट वी विल ऐड वन बटन. एम्प्लॉय लिस्ट में हमने यहाँ पे एक बटन ऐड किया, यू रिमेम्बर. और ये बटन पे जब मैं क्लिक करूंगी तो नाउ इट शुड नेविगेट टू दिस लिंक. उसके लिए हमने क्या यूज किया है, देखो, लिंक टू. सो आफ्टर क्लिकिंग ऑन बटन, हम इंस्टेड ऑफ doing some job and showing in the same page, are we changing the URL so that it will go to another component? तो ये लिंकिंग किया ना बटन का और लिंक का. अदरवाइज हम अभी तक क्या कर रहे थे, ऑन क्लिक करके उसी पेज पे रह रहे थे और एक ही पेज पे सब कुछ एक साथ दिखा रहे थे. बट अभी हमने क्या किया, एक ही कंपोनेंट दिखाया, फिर इस पे क्लिक किया तो ये यूआरएल चेंज होगा, और ये यूआरएल अगर आया तो कौन सा पेज दिखाना है वो हमने app.js में लिख के रखा है, राइट. अभी app.js में हमने क्या लिखा, यूआरएल अगर किसी ने चेंज कर दिया टू ऐड तो कौन सा फॉर्म आना चाहिए, तो कौन सा फॉर्म आना चाहिए, एम्प्लॉय ऐड का फॉर्म आना चाहिए. ओके, so for that we will have to import this link over here. तो अगर हमें किसी बटन पे क्लिक किया तो यूआरएल अगर चेंज करना है तो कैन वी यूज दिस वे ऑफ राइटिंग इट, लिंक ऐड करना है. अगर बटन पे क्लिक किया और यूआरएल चेंज करना है तो बटन पे ऑन क्लिक नहीं लिखना है, इंस्टेड ऑफ दैट हमने क्या किया, लिंक यूज किया. अभी ये लिंक टैग की वजह से क्या होना चाहिए, ये ऐड बटन पे ये ऐड यूआरएल आया तो इट शुड शो अस एम्प्लॉय ऐड. Similarly, in employee add function, in employee add button, you can see that यहाँ पे हम डेटा डालेंगे and are we clicking on the button? अभी बटन पे क्लिक किया
तो हम URL लिंक नहीं चेंज कर रहे हैं, तो आर वी कॉलिंग वन फंक्शन, और फिर हम फंक्शन के अंदर दिस डॉट प्रॉप्स डॉट हिस्ट्री डॉट पुश करके URL चेंज कर रहे हैं क्या इधर? तो अगर बटन पे क्लिक इवेंट लिखा है और उसके बाद हमें अगर URL चेंज करना है तो लिंक यूज नहीं कर सकते, फिर क्या तरीका है? ये दूसरा तरीका है URL चेंज करने का। तो बटन पे क्लिक करने के बाद अगर हमें कोई जॉब करना है, कुछ एक्शन करना है और उसके बाद URL चेंज करना है तो डायरेक्टली लिंक टू नहीं कर सकते। तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या किया, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट हिस्ट्री डॉट पुश, दिस इज अनदर वे ऑफ चेंजिंग द URL इन रिएक्ट। फिर हमने क्या किया, फिर एम्प्लॉय कार्ड में अगर हमने ये वाले बटन पे क्लिक किया तो हमें URL चेंज करना है, तो आर वी यूजिंग लिंक टू हियर बिकॉज वी वांट टू चेंज द URL। बट ये URL के साथ साथ हमें डेटा भी भेजना है, इसलिए यहाँ पे अंदर हम ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, अंदर हम एक ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं एंड विद इन दैट ऑब्जेक्ट वी आर पासिंग द प्रॉपर्टी कॉल्ड एज पाथ नेम, जिसको हमने चेंज्ड URL असाइन किया है और डेटा भेजना है, इसलिए यहाँ पे एक वेरिएबल लिया और ये वाला डेटा लिखा। अभी ये पूरा इंफॉर्मेशन जब हम लिंक चेंज कर रहे हैं तो ये लिंक टू कौन सा ऑब्जेक्ट चेंज करता है, लोकेशन ऑब्जेक्ट, और लोकेशन ऑब्जेक्ट इज अ बिल्ट इन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, वो हमें नहीं बनाना है। वो लोकेशन ऑब्जेक्ट में ये URL सेट हो जाएगा और उसके अंदर ये डेटा आ जाएगा। सो अगर हमें ये जब URL आया तो कौन सा कंपोनेंट हम दिखाएंगे, ये URL आया तो कौन सा कंपोनेंट हम दिखाने वाले हैं, वो कहाँ लिखा है, एम्प्लॉय app.js में, तो कौन सा दिखाने वाले हैं अगर एडिट URL आया तो? एम्प्लॉय एडिट। अभी ये एम्प्लॉय एडिट को डेटा आएगा तो वो डेटा आएगा लोकेशन ऑब्जेक्ट से, सो आर वी रिट्रीविंग इट फ्रॉम लोकेशन ऑब्जेक्ट state.employee? somebody was asking me what is this location, so are we retrieving this location data from here? तो अगर आपने कहीं पे भी क्लिक किया और अगर उसके साथ आपको डेटा भी भेजना है, सो दिस इज द वे यू कैन सेंड द डेटा। ओके, दिस इज द वे यू कैन सेंड द डेटा। अभी ये डेटा अगर आपको वो कंपोनेंट में रिट्रीव करना है तो आप कौन सा ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हो, लिंक से जो हमने डेटा भेजा है उसके लिए कौन सा ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हो, लोकेशन, और लोकेशन से हमने वो रिट्रीव किया, वी हैव असाइंड इट टू स्टेट, क्योंकि हमें वो फॉर्म में दिखाना है और स्टेट का डेटा हमने ऑलरेडी फॉर्म के साथ एसोसिएट करके रखा है, तो ये एम्प्लॉय आईडी को जो असाइन करेंगे ये फॉर्म के इनपुट टैग में दिखेगा, बराबर। तो दिस इज हाउ वी आर राइटिंग इट। अभी अलग अलग तरीके से हम वो URL चेंज कर सकते हैं। एक तरीका हमने देखा मैन्युअली हम टाइप कर सकते हैं, दूसरा तरीका देखा बटन क्लिक पे करना है तो लिंक टू यूज करो, बट ये लिंक टू के साथ साथ सिर्फ URL नहीं डेटा भी भेजना है, तो हमने देखा लिंक टू के साथ साथ आप ऑब्जेक्ट भेजो और पाथ नेम प्रॉपर्टी को URL भेजो एंड दूसरा कोई भी एक प्रॉपर्टी डाल के नाम को स्टेट प्रॉपर्टी को यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट भेजो and to that object you assign the value. So this is how you can send the data also. So ये data हमने employee edit में retrieve किया via location object and assign it to this particular object. Assign it to state object. तो because of that वो form में आ गया। अभी form में आने के बाद हम क्या कर रहे हैं? So here we are writing update employee handler which will actually update the data in the array. And to navigate to some other URL, we have to use this push. Okay, तो प्रोग्रामेटिकली अगर हमें ये URL चेंज करना है तो history.push फंक्शन यूज करना है, अगर बटन क्लिक पे करना है तो लिंक टू यूज करना है, इट इज दैट सिंपल। और लिंक टू के साथ हम डेटा पास कर सकते हैं। नाउ आर यू गेटिंग आइडिया अबाउट राउटिंग? Are you getting idea about routing in Angular? Sorry, React.
क्यों राउटिंग यूज किया ये समझ में आ गया सबको? So this is how you will have to use routing. तो अभी आज क्या करो, go through the code, entire code. मैं अभी ये share करूंगी आपके साथ. Go through the code. So this is how you can use it. I will share this particular code. You look into it in the lab, and still you find any difficulty about any of the line, let me know. Is that fine for all of you? Will you try it in the lab today? Okay. So now it is 1:15. We will start at 2:15. कोड गो थ्रू करो पूरा, और कहीं पे अटक रहे हो तो मुझे पूछना. So I'm stopping sharing of the screen. So see you at 2 o'clock, 2:15. See you at 2:15. अभी हमने अभी राउटिंग देखा है ना. Now what is remaining is Node.js के इसको कैसे कनेक्ट करना है, Node.js से वेब सर्विस से डेटा कैसे लेना है, वो बचा है ना. Axios मॉड्यूल एंड React का एंड Redux का इंट्रोडक्शन. These two things are pending. तो कल हम करेंगे वो Redux का इंट्रोडक्शन एंड how to connect to the Node.js एप्लीकेशन. दीप्ति डीबगिंग अगर आपको करना है तो आपको यहाँ पे ब्राउजर में, एज आई शोन प्रीवियसली ऑल्सो, यहाँ पे ब्राउजर में आपको सोर्सेस में जाके यहाँ पे इट विल शो यू द जावास्क्रिप्ट कोड. फिर आपको ब्रेक पॉइंट डालना पड़ेगा. एक सिंपल एग्जांपल देके आई विल शो यू इफ यू वांट. Okay, we will see that in the lab. Okay. So see you at 2:15. Bye all.